Monwangam for the welcome speech. Thank you so much. Kami ani ini le time kap kutu jongwan sang tu manjong kopu untuk le kem kama hangla taiku ta GB HGB abang ma pastor abang ma kem kama kami ani felicitate koring ngoiku ya achievers kem nyau saman wancho kama first ma ekjama achongam chai ji गुईते देखू जिन्ना तक मेरा आइडिया है वहाँ चो में जी फर्स्ट लेडी एडवोकेट चंग फुल क्वालिटी देखू है को जो क्या मैं था क्या मैं सॉलिड डाटा चिते को लगे लंगा मनसक ये जी में फर्स्ट लंगा मनसक है को जो न्यूज़ साम के जी फर्स्ट एडवोकेट चंग फुल है पक चक्कर ना करें तो ले छोटा सा कोई मामूली सा एग्जाम नहीं था अरुणाचल स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम है जी टॉप मारी रखू वो भी 2 ही सीट था एक में टॉप मारी ले अरुणाचल में टॉप मारी को ले ओवा था को ले लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में कहता लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में ओवा वांचो में से कौन है को ले न्यूसा ले ले के न्यूसा मन तले तले अचो का चेंडो जी है जो के मैं जी तो फेलिसिटेट को है जान पंग ले के मैं याकुan ya I on behalf of Nyausa Students Union, Nyausa Elite Youths and Nyausa Women Welfare Society, I welcome all the dignitaries and all my dear friends. Thank you. Tusang yung putuma ayala lang sa kanaka ibibima kakilang magmata isi makata ni sa ikona pachakwa sa testo napakupacho. बधाई मैं न्योसा वालों को देना चाहता हूँ। मेरा भांजा और मेरा भाई ने इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आया है कि तिंकाई मोनवांगम अभी एक मामूली तिंकाई मोनवांगम नहीं रहा, वो एक जज बन चुका है। आई बोमा केम भाई जोखामा ngam sei angsu kunau GA एडवोकेट सक्सेस हो रहा चिया था ची एडवोकेट ngam sei bang su le ching ha zana hai men mit chakwen tam ko hai le ku no sam le ko sitele ngam sei hiya tingkai mon ham ni ning le achat site को ओपन ज्ञानम खामा करा कीजिए किसको जज बनना है किसको एडवोकेट बनना है और इसी तरह बल्कि इनफैक्ट टीसीएल एरिया से पहला जज होगा एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न वांचो के कंसर्न के लोग मके को फर्स्ट ई शिक्षण को जज हर कोई चाहता है कि ऑफिसर बने, हर कोई चाहता है कि हर मुझे अगर पेरेंट्स होता है तो हर कोई पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है कि अपना बच्चा को कोई इस तरह का अचीवमेंट का कोई फेलिसिटेट करे टिंकाई तो काई का काम से काई को वेलाई लबाkai टिंजंग तो काई का पंखु डॉक्टर पंखु तो काई को वेलाई बाkai के मजंग जो मतलब को न्यूसा ताली बस्तु यो मा न्यूसा हर चीज में आगे होय माय लेको रंग मैंने मुक्ति कर सुन था इनको न्यूसाइज्म एक वर्ड्स मैंने जो कोइन किया था आई थिंक इन एवरी कन्वर्सेशन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द न्यूसाइज्म ना वांचो का फर्स्ट डॉक्टर न्यूसा से है वांचो का फर्स्ट लेडी एडवोकेट न्यूसा से है और फिर तहसील एरिया का जो फर्स्ट जज भी न्यूसा से है ये तो हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है न्यूनू में एक आर्म रेसलिंग हो देखो जा केमती थी पंजाब है ना मेडल लेके आया था न्यूनू का लड़का ने न्यूसा में मैं समझता हूँ बहुत तकड़ वाला लड़का लोग है उसमें भी अपना प्रोफेशन लेकर के उसमें भी मेडल जीत करके न्यूसा का नाम कर सकता है It gives me immense pleasure to know that one of the village youth has cleared judicial service examination. He has not only cleared, he has stood first. That's a matter of great pride. And Miss Namsai also, she has cleared LLB and she is the first advocate. This gives me immense pleasure that there are people in these villages who are doing excellent. It reminds me of my old days. I am also from a village similar to this, and there is nobody in army or air force or navy who is commissioned officer.
So it reminds me of my days when I got commissioned and I was felicitated by my villagers, just like this program. So most of the credit for this their success goes to their parents, who have sacrificed a lot, who have sown the seeds of their dreams in their minds, and they have worked hard day and night. You know, it's very difficult to clear judicial service examination, and that too clearing with the first rank. It's indeed a great thing. Okay, so what is there for you guys? You guys can take inspiration from them. They are the first one. They will be spearheading the youth. You can always turn to them for guidance. Okay, and they will never reject you. They will never say no to you. There can be n number of streams where you would like to go, because not everybody can become judge, not everybody can become doctors. It's not possible. But different people have different talents. So you should identify what talent I am having. Am I good in sports? Am I good in studies? Am I good in other physical activities? Or am I good in discipline or some other thing? I want to join defense forces, I want to become doctor or something, whatever can be your choice. But you should know that nothing is impossible. You just have to plant a dream in your mind and you just work hard, because you know nowadays the employment rate is so high and very talented youths are sitting unemployed in our country. You know the state of unemployment in our country. So it's really a commendable thing that they have done, clearing that exam and setting an example for you guys. So you should take a leaf out of them and learn. Failure will come your way. You might not succeed in your first attempt. There are examples where people have cleared their exams in 10th attempt, 11th attempt, 5th attempt, n number of attempts. But it is only the determination that keeps you going, and ultimately you clear this. So again, I would like to congratulate Mr. Tatai and Miss Namsai for their achievement. EBP student am hanpak ngban guzaile anupam hanban guzaile kim kam kheba nai chongle and to suka cho baba ma homenati nga pon ko ya. LLB I have done from Jerbom Gamlin Government Law College, which is first government college of our Arunachal Pradesh. And also I am the first lady advocate from our Jerbom Gamlin Government Law College, Itanagar, Arunachal Pradesh. चलेंगे नहीं, हमने अपना बच्चा लोगों को कैसे पढ़ाना है, कैसा बेचना है, वो मालूम होने के लिए थोड़ा सा हम शेयर कर देगा. इवन यूपीएससी कोचिंग तक आप फ़ोन से कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आप सिर्फ ब्लेम उन पे मत डालिए कि मेरा पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं दिया पढ़ने का. मम्मी पापा और सबको हम दिल से वो थैंक्स देते हैं कि आप लोग का प्रेयर का वजह से पॉसिबल हो पाए. जब भी हम कुछ प्रॉब्लम होगा, एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, कुछ तकलीफ होगा, दुख होगा, कॉल करेगा मम्मी को, मेरे लिए एक प्रे कर दो, तो चर्च में अनाउंस करेगा, प्रे कर देगा. सब ने बहुत दिल से प्रे किया, और वो फास्टिंग प्रेयर और जो कि आप लोग प्रे करते हैं चर्च में, वो हम लोग को बहुत इफेक्ट करता है. मेंटली हम लोग को, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम लोग को स्ट्रॉन्ग करने का एक मोटिव देते हैं. तो उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. एक अच्छा पेरेंट्स कैसे होना है, क्योंकि अब एक आपके बेटा के सक्सेस में आप अच्छा माँ बाप होने का बहुत बड़ा हाथ है. अब अगर अच्छा माँ बाप होगा तो बेटा अभी बोला हम एक एग्जाम्पल है, हम अच्छा बेटा नहीं, मैं ज़रूरत पड़े तो रात का 1-2 बजे का आता हूँ दारू पी के कभी कभी. अभी अपन पो अभी क्लास 11-12 में 1-2 लड़की को लाइन भी मारा है मैंने. तो कोई भी ढंग से मैं मतलब कोई आइडियल नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा पिताजी माँ हमको इतना अच्छा मिला, इतना परफेक्ट मिला कि वो दोनों ने हमको बतौते नहीं दिया. थोड़ा सा बतक नहीं करते हमको ट्रैक पिला देते थे, थोड़ा सा बतक नहीं करते फिर हमको खिस पिला देते ट्रैक पे. तो आप लोग इससे क्या सीख सकते हैं? आप लोग सब यहाँ में मैक्सिमम का बेटा है, बेटी है, आप लोग कॉन्स्टेंटली इसको गाइड करो. बोल है कम से कम दिन में आधा घंटा टाइम दो अपने बेटा को. ये जरूरत नहीं क्या उसको पढ़ाना जरूरत नहीं उसको, चलो वो स्कूल में पढ़ लेगा. बच्चा को इतना पढ़ना भी नहीं, लेकिन आधा घंटा उसको टाइम दे कि आप आज क्या किया, स्कूल में क्या क्या बताया टीचर ने, आपका दोस्त कहाँ गया, कैसी आपका लाइफ कैसे चल रहा है, आपके दिल में क्या सोच रहे हैं. बच्चा लोग से अपने बेटा से बेटी से टाइम शेयर करो, अपना दिल के बात उन लोग को आपका सामने खोल के बताने दो. आप लोग अच्छा माँ बाप होगा, अच्छा पेरेंट होगा, बेटा जरूर आगे बढ़ेगा. और चलो ये हर कोई तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, हर कोई जज भी नहीं बन सकता, हर कोई एडवोकेट नहीं बन सकता. जरूर नहीं, हर किसी का अपना अपना टैलेंट है. जिसका जो टैलेंट है उसमें आगे बढ़ाओ. ये भाई है उस दिन सिल्वर जीत के आए उसमें आर्म रेसलिंग में, फिर
जैसे कि कोई दौड़ा दौड़ी में, कुश्ती में, कोई भी चीज़ में अच्छा हो सकते हो, उसमें जो चीज़ में आप अच्छे हैं उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये जरूर नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा होगा। तो हमको एक टीचर मिला हमको, गौरंग दास बोल के, अभी कहाँ में पता नहीं, कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो टीचर ने हमको क्लास 8 में हमको इतना अच्छे से पढ़ाया, तब से लेकर मेरा मैथ्स में अच्छा हो गया। क्लास 10 में मेरा 90+ था मैथ्स में, क्योंकि वो टीचर ने हमको बहुत गाइड किया। तो अब वो कहीं भी होता होगा, वो टीचर गौरंग दास सर के लिए एक बार तालियां बजाइए। अगर हम कर सकते हैं, हम आपको साथ ही बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यही बोलेंगे। थैंक यू।